Hello kids, how are you? Good morning to all. Renu here in same online class in front of you with the topic of social science. Okay, it is related to your civics topic. It is related to civics. Chapter 3rd. Name of the chapter is the role of the government. And today I am going to explain you about government, what is government, what is democracy, and what is the role of government, and what is the need of government, and how does government work. Listen student, role means कंट्री, भूमिका है ना, रोल प्ले, वर्क, एफिशिएंसी टू डू, एंड गवर्नमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग टू एडमिनिस्टर द कंट्री, है ना. हिंदी मीनिंग होता है सरकार, बट मीनिंग इज टू manage the whole country, or we can say entire country. So it's depend on we people, how we are here. You are thinking that we are here and how it is possible to survive by us. So can you think it's possible? We are the leader to elect the people, and we are the person who elect the people by election system and give the authority to government for do different work. Okay, in this criteria, need for government, author R.W. Gilchrist. According to author Gilchrist, this is here that India is a secular country and as well as India is a democratic country. In this democratic country, what you can say, democracy mean to say rule by people, rule for people, elected people by the government, by the people. हम ही अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं इलेक्शन प्रोसेस से. हम एक एबल पर्सन को चूज़ करते हैं जो हमारे लिए रूल करे. वाई शुड वी नीड फॉर द गवर्नमेंट? वट इज़ द नीड फॉर गवर्नमेंट? रन द कंट्री इज़ अ कॉमन वे इन ए सिंपल मैनर. इट इज़ नॉट पॉसिबल. लिसन, इट्स what is the great difference between well managed country and indisciplined state or country? There is a great difference. While we are intellectual and genius people, है ना, and animals are wild. आपने देखा है फॉरेस्ट में एनिमल्स क्या करते हैं, इधर से उधर एकदम भागते हैं, मूवमेंट करते हैं, सर्वाइव करते हैं. अब सर्वाइवल क्या है? दे रन ईच एंड एवरीवेयर. देयर इज़ नो सर्टेन रूल और नथिंग इज़ देयर फॉर देम, नो रूलिंग फॉर देम. उनके लिए कोई रूल नहीं है ना, कहीं भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट. बट इफ़ वी मूव राइट देन वी आर punished by government, as we can say judiciary system. We will discuss. So what happened nowadays for making rules to after the independence and after the First World War, we had to need to run the government in an administrative way, in a smooth way, in a well disciplined way. We wanted to make some rules, and according to rules we drawn our constitution, that is known as judiciary system, bill of laws. Okay, हमने अपने इस कंट्री को, there were many problems, social evils, है ना, there were no right to vote. ऑलरेडी ना तो विमेन को था और ना ही
मैन को धीरे धीरे मैन को राइट टू वोट मिला। आफ्टर देन ये भी बंद हो गया। उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे मैटर थे, सोशल इश्यूज थे, उनको रिमूव करने के लिए और कंट्री को एक सिस्टमैटिक वे में रन करने के लिए ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट रूल फॉर अस, फॉर कंट्री। You know very well, country has different level, 3 levels are there, but need क्यों थी, गवर्नमेंट को क्यों चूज़ किया गया, क्यों बनाया गया? Listen, giving you one example, at our home, whose monopoly is there? Our mother. Mother is superpower, mother is prime minister or we can say president at our home, है ना? According to mom, each and every works are survive to us. Mom do according to her wish, but if we talk about always she do goods for everyone, करती है ना सबके लिए अच्छा, जो भी बनाएगी जो भी करेगी वो सबके लिए इक्वल होगा, बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी तो क्या लेगी, सबके लिए इक्वल और सबके लिए गुड। पनिश होगा तो सबका इक्वल, आइदर ही इज प्रेसिडेंट और शी इज़ प्राइम मिनिस्टर। कोई भी सिस्टम है, रूल है इस इंडिया कंट्री में सबके लिए, ऑल आर इक्वल इन द इंडिया कंट्री। ओके, हियर सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वी कैन से मम्मा ने अपना रूल चलाया, कुछ बनाया, वो जब टेबल पर आया सबको पसंद आया। मम्मा, पापा, भैया, भाभी ऑल वांटेड टू ईट देम। अब यहाँ क्या लगा आपको कि जो था वो इतना गुड था कि सबको अच्छा लगा। अगर कुछ गलत था तो हमारी जुडिशरी उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देगी। फ्लेक्सिबिलिटी आर देयर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग great flexibility, that is known as amendment. Amendment means, what do you mean by amendment? Amendment means changes, amendments. Okay, these are the changes, day to day changes in law. क्योंकि जो फिक्स लॉज हैं वो सरवाइव नहीं किए जा सकते। डे बाय डे जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें और आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें अपडेट होना है तो हमारे अमेंडमेंट भी चेंज होते जाएंगे। ओके, सो अब वहाँ पर सब ओके हो गया। सो अकॉर्डिंग टू जुडिशरी सिस्टम, ऑथर गिलक्रिस्ट, वी नीड गवर्नमेंट फॉर मैनेज द कंट्री, टू रन द कंट्री इन अ सिस्टमैटिक वे। So these are the main organ of the government. Number 1, legislature. Number 1, legislature. Executive. Number 3, judiciary. These are the 3 main organs of the government. Legislature means the main power that makes laws to legislate country and they make control over executive. They do amendment of law and judicial function as well as judicial function. In executive, this is the second level of the organ. And what is the work of this executive? Administrative function, legislative function, defense, judicial, financial. Administration to make rules for country, legislative, defense, protection, बचाव, जिसमें हमारी डिफेंस अकेडमीज भी आती है, जुडिशियल में लॉज, रूलिंग, जुडिशरी सिस्टम, एंड फाइनेंशियल रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक मैटर. Judiciary, it is the main organ of the country. We can say superpower of country. Without judiciary system, nothing is possible in country. If anybody do good, then judiciary suggest and reward them. If anybody do wrong, then judiciary punish them. Interpretation, protection, to give advices. Okay, in this way, people by election method, they vote to people who is responsible for the country.
and that's why they make laws for country. Okay, so in this chapter we are going to discuss briefly these topics according to need for government and then legislature. Legislation is the most important function of the legislature, and light of past experience and present requirements. Number 2, control over executive. It can also remove the council of minister and pass a no confidence motion. ये ऐसा रूलिंग है जो किसी का अगर उसे नहीं रूल पसंद आ रहा तो वो उसे कैंसिल भी कर सकती है, पास नहीं भी करेगी तो इट्स ओके. ओके, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अमेंडमेंट कोई भी सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, अमेंडमेंट उसमें करके उसे दोबारा लॉ में अप्लाई किया जा सकता है. ये कौन करती है? लेजिस्लेचर. एंड पासिंग द बजट. लेजिस्लेचर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फाइनेंस. फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट बिफोर द पार्लियामेंट. कौन प्रेजेंट करते हैं? बजट. हमारी मेन इम्पोर्टेंट बजट. आई विल डिस्कस यू बजट इन ब्रीफ. दैट complete economic level 1 year planning made by government. Okay, that is made by finance minister. And reject or pass any proposed tax or item, that is depend on legislature. That is the work of कोई भी बिल को पास करना, लॉ करना और नहीं पास करना, डिनाई करना, किसकी फंक्शन है? लेजिस्लेचर के. जुडिशियल फंक्शन. Some countries the legislature is the highest court appeal. In India and in America, impeach the president. Who is the superpower? President is the superpower here in India as well as in America. Okay. Number 2, executive. This is the main organ and it is the most important. It makes laws. What is the main function of this? It makes the impose the law or people through the state of the following way. Administrative functions. It is the primary function of the executive. It punishes those who break the law. जो ब्रेक तोड़ते हैं, लॉ को ब्रेक करते हैं, उन्हें पनिश भी करती है और punishes those who break law. And government looked after each by a minister in charge of that department. Now legislature function. Parliament is not a session. It become law only when the president give his assent. कोई भी बिल पास होता है यहाँ से होकर इधर आएगा, उस बिल पर जब तक प्रेसिडेंट की असेंट यानी फाइनल कंसेंट नहीं लग जाती, वो ओके नहीं बोल देते, उनके असेंट नहीं होती, तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बनता. ओके, सो प्रेसिडेंट हु समन्स प्रोड्यूस और डिसॉल्व द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में हो रहा है ये सारा मूवमेंट, अगर कहीं भी उसे लगता है तो वो उसे डिसॉल्व भी कर देता है. डिसॉल्व यानी बीच में ही तोड़ देना, भंग कर देना. डिफेंस. एक्सिक्यूटिव लुक आफ्टर द डिफेंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन इन्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी मदरलैंड. एंड in America, president is the supreme commander of the armed forces. He declares wars and sign treaty. डिफेंस में क्या मेन काम हो गया इनका? जो जुडिशरी है, एक्सिक्यूटिव है, मेन उसका ये वर्क है कि जो आर्मी के वर्क्स होते हैं और उसके अलावा जितने भी कमांडर ऑफ फोर्स हो गए उनको भी सुपरमेसी कौन करेगा? प्रेसिडेंट. कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट. वही किसी भी युद्ध की घोषणा करेगा और फाइनल जो पीस और वार दोनों की ट्रीटी साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट. जुडिशियल फंक्शंस. द एक्सिक्यूटिव अपॉइंट जजेस इन कंसल्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जुडिशियल फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसमें सभी जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट, जो किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इससे बिलोंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला करके एक जुडिशरी सिस्टम सेटअप किया जाता है. प्रेसिडेंट इंडिया हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन. नंबर 5,
financial function. It is related to money, and it prepare budget and get it passed. In this way it get the right to collect taxes and to spend the money, to pass taxes and to collect money as tax. Okay, bill become लॉ. कोई भी बिल है फाइनेंशियल, उसे यहाँ पर कंसेंट मिलती है, पास होने के बाद ही वो यहाँ से ओके करने के बाद उसे लॉ बनाया जाता है, लॉ का पार्ट बनाया जाता है. ओके, नाउ जुडिशरी एंड इट्स फंक्शन. व्हाट आर द मेन फंक्शन? नंबर 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेट मी अंडरस्टैंड यू व्हाट इज जुडिशरी. इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी and law of government are being obeyed or not. In case of laws are broken or violated, punishes or offend or offenders. Means to say judiciary is the main organ of the India country, and all Indian people have to bound to obey the rule of judiciary system. How it is possible to obey? It is possible. Separate rules and separate articles are set there in judiciary system. उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हर एक क्राइम के लिए एक आर्टिकल है, हर एक सिस्टम के लिए. जैसे इंटरप्रिटेशन है, प्रोटेक्शन है, टू गिव, हमें किस साइड चलना है, राइट और लेफ्ट. वी हैव अवर रूल्स. इन ईच एंड एवरी स्कूल दे हैव सेट देयर सेपरेट रूल, है ना. सेम थिंग इज देयर. गवर्नमेंट हैव 3 levels. नंबर 1 नेशनल लेवल, नंबर 2 स्टेट लेवल और नंबर 3 लोकल लेवल. सो नेशनल लेवल इज डिपेंड कम्प्लीटली. नेशनल नेम सुनते ही आपके दिमाग में नेशन आता है, कंट्री, होल कंट्री, है ना. सो जो मैटर हमारे नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने पड़ते हैं वो नेशनल है. जो स्टेट लेवल पर है, स्टेट मीन्स टू से पंजाब, राजस्थान. इन विच स्टेट डू यू लिव? You will give your answer. Okay, today's query: in which state you live and in which village or district you live. Okay, you will tell me. So in this concern we can say state level, local level. Here it is system set by these 3 levels: national level, state level, local level. किसी भी स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे स्टेट लेवल में आएंगे, और लोकल में हमारे विलेज और जिस लोकेलिटी में वी आर लिविंग इन एज, दैट इज़ नोन एज लोकल लेवल. दीज आर लोकल लेवल एंड लोकल बॉडीज आर देयर फॉर देयर वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग. ओके, इज इट पॉसिबल टू रन प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट क्या घर तक, यहाँ तक आकर, हर कितनी करोड़ आबादी है हमारी इंडिया की, तो इज़ इट पॉसिबल टू गो प्रेसिडेंट डोर टू डोर, होम टू होम? नॉट पॉसिबल. हमारी कंट्री को रन करने के लिए हर पार्ट में, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, हर एक पार्ट में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज सेट की गई ताकि ईजीली प्रेसिडेंट अपनी वर्किंग दे सके. वहाँ से वर्किंग को सेट करने के लिए उसे स्टेट लेवल में बांटा गया. स्टेट लेवल के बाद उसको लोकल लेवल में डिवाइड कर दिया गया. स्टेट में भी राजस्थान है, राजस्थान में आगे हनुमानगढ़, गंगानगर. दीज आर द लोकल लेवल एंड दीज आर लोकल बॉडीज. ओके, नॉट पॉसिबल. वन मैन कैन नॉट सर्वाइव थ्रू आउट द कंट्री. ओके, सबकी प्रॉब्लम्स कहाँ पहुँचती हैं? नेशनल लेवल पर. लेकिन कैसे? थ्रू द चैनल. वी आर द पीपल टू चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव और टू चूज अवर लीडर बाय द इलेक्शन मेथड. एंड whenever winner person is there, who is the winner person? Who run the government in a smooth way, in a perfect way, that is government. We are the people to choose our election. कोई भी एमएलए है, वार्ड मेंबर है, कौन बनाता है? सीएम है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन चूज़ करता है? कॉमन पीपल, है ना. हम ही हैं चूज़ करते हैं. तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव
कैसा चूज करते हैं. सो जुडिशरी इज completely bound, or this is the main organ to supervise all over the country. Interpretation of the constitution means judiciary has the sole power to interpret the constitution, declare particular law, ultra virus against constitution, violate the spirit of the constitution. And number 2, settlement of dispute. कोई भी settlement either in state level or at district level, or we can say at national level, all are completely under the government. कौन dispute को settlement करता है? Judiciary. ये ऐसा organ है जो किसी भी level के कोई भी dispute होते हैं उनको एक साथ solve out करने का काम करती है. Either it is between state or national or international. सारा का सारा concerning boundary cases, ये सब किस पे रिलेटेड करेंगे? किससे रिलेटेड है? जुडिशरी सिस्टम बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और अमंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री. और किसी भी कंट्री की इंटरनल स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एनीथिंग एल्स, कोई भी स्टेट है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट से जितना भी डिस्प्यूट है या कोई भी सेटलमेंट है वो किसके अंडर में आएंगे? Judiciary system. Protection of the fundamental right. Judiciary protect the fundamental right. We have fundamental right as we have maintained our constitution, as well as we have some fundamental rights as well as fundamental duties. तो हमें उन ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के लिए अपने राइट्स चाहिए ना, सबको चाहिए. So to give advice to the president so desired can seek the advice to Supreme Court regarding the legal position of any matter. कोई भी मैटर हो वहाँ पर ये अपनी एडवाइस भी देती हैं. Judiciary is the main organ that protect or crime. If one do crime, then it can damage, punish and कभी भी किसी ने अच्छा काम किया तो उसके लिए जुडिशरी रिवॉर्ड भी करती है. लेकिन रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ आर सेम, आइदर इट इज़ फॉर प्रेसिडेंट और ए कॉमन पीपल. ओके, तो जुडिशरी हमारा मेन ऑर्गन है. जुडिशरी वर्ड है जो जज से बना है, जिसकी मेन पावर किसके हाथ में हुई? जज. ओके, लॉ, ये हमारा लॉ है. वी कैन से इट इज़ आर गवर्नमेंट, इट इज़ आर government. It is now level of the government, local level, number 2 state level, number 3 national level. Okay, local level I already explained that village, community, locality, town और district, ये सारे आपके local level हैं जहाँ पर आपकी government run करती है. और they are responsible to see the problems at state level, local level. Okay, नंबर 2 स्टेट लेवल. दिस इज़ हाईली, छोटा सा बड़ा है किससे? लोकल लेवल से. कैसे बड़ा है? क्योंकि स्टेट जो है पूरी स्टेट के जो मैटर्स हैं उनको देखती है. और नेशनल लेवल हाईएस्ट लेवल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री. दे पास ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट टू द हाईएस्ट गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट, और वी कैन से international level. Some matter check that the state government function properly. Now what is the system? Election system, monarchy. It is the first system of government that is known as monarchy. In this form one king or queen is there. Hereditary system is there. उसका क्या मतलब होता है hereditary का? That is the system मोनार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डेमोस प्लस क्रेटस, है ना? डेमोस प्लस क्रेटस, जनता का रूल फॉर पीपल, रूल बाय पीपल है. और वी इलेक्ट द पीपल एंड वी मेक द गवर्नमेंट. वी आर रिस्पॉन्सिबल to choose the government, either government is working good or working bad, we all are responsible. And monarchy, here it is king or queen, or we can say a group of
only a king or queen is the head of the power. Nowadays it is not in working. इन दिनों किंगशिप क्वीनशिप नहीं है. ऑलरेडी मोनार्की ऐसा सिस्टम था जिसमें किंग है वो अपनी, वही जो सेम मैंने एग्जांपल बताया कि आपकी मम्मा आपका वर्क करती हैं, देखती हैं, लेकिन किस मैनर में देखती हैं. आपने सुना ना कि वो जो चीज़ें करेगी वो सबके लिए बहुत गुड होंगी, ऑलवेज गुड. ऐसे ही जो किंग होता है वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा करता है, जो भी सोचेगा वो बहुत गुड सोचेगा. तो मोनार्की एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किंग को पावर दी जाती है, लेकिन पावर के साथ वो सारा का सारा सिस्टम बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सबको देता है, जिससे हमारी गवर्नमेंट इजी वे में हमें फॉलो करेंगे, हम उसे कर सकते हैं. यहाँ पर इसने सबका अच्छा देखा, लेकिन ओनली वन मैन पावर ही होती है. ये हेरिडिटरी सिस्टम पर डिपेंड करती है. उसके सक्सेसर जो उनके बेटा है बेटी है फर्दर उनको भी ये दी जा सकती है. फिर उसके बाद है डिक्टेटरशिप. दैट इज़ डिक्टेटर, नाम से पता लग रहा है ना, तानाशाह. दैट इज़ डिक्टेटरशिप. तानाशाही मीन्स टू से अपनी अपनी चलाना, ऑलवेज डू योर ओन, उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं. उसका क्या मीन होता है डिक्टेटरशिप का? वन मैनशिप, और समटाइम इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, एग्रेसिव ग्रुप ऑफ पीपल. यानी अपनी बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया कि हमने जो करना है बस वो ही करना है, और हमें पूरी कंट्री से कोई मतलब नहीं है, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे. sometime it may be violent or sometime it may be bad for everyone. So it was not so popular. Who do you like that kind of level of government? No, nobody want to this kind of level. Democracy is the most important organ of the government. Demos पीपल, रूल का पीपल है. ये सबसे अच्छा जो भी देंगे उसमें किसकी विल होगी? हम लोगों की. सबका अच्छा छुपा होगा कि जो सभी को अच्छा लगे वो ही. तो आपने देखा किस तरह से 3 लेवल्स हैं ये, जो डिफरेंट टाइप से गवर्नमेंट की वर्किंग करते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी है वो मेन है. डेमोक्रेसी इन दिनों इलेक्शन सिस्टम में डेमोक्रेसी मेन पार्ट करती है. ये सिस्टम में नहीं है, ये भी नहीं है. मोनार्की इज़ नॉट नाउअडेज. श्रीलंका में थी, वहाँ से भी रिमूव हो गई और अब कहीं नहीं है इंडिया में. ओके. एंड डिक्टेटरशिप इज़ ऑल्सो नॉट देयर, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप होती थी उनके व्यूज़ बहुत एग्रेसिव होते थे और जो कॉमन पीपल हैं वो उन लोगों को पसंद नहीं करते थे, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा वायलेंट थे. सो before independence only few people could exercise the right to. Now universal adult franchising, this is the last topic of the chapter. In this concern, this would mean that everyone is not treated equally in the country. Such democracy is not pure democracy. Every adult citizen has been granted the right to vote. It is said हर किसी को right to vote है, पहले नहीं था. It was British rule all over almost 200 years from 1757 till 1947. During the period, several attempts were made by Indians to participate in the governance of the country, but these attempts were not encouraged by the British. So gradually manner, before independence only few people could exercise the right to vote. After then, generally with property were allowed to their caste, their religion, and then day after day this was growing. This section of the society in the election process and introduce universal adult franchisee. In this system all have right to give the vote, either men or women, after the age of 18 to 21. And apartheid is the term discrimination
on the basis. Dictatorship means government where one man who is normally from a military background rules the state. ऐसे लगता है कि जैसे घर पे आर्मी रूल चल रहा हो, मिलिट्री रूल होता है. डिक्टेटरशिप ऑलवेज बस ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे नहीं जाना, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है. यहाँ पर आपकी चॉइस नहीं होती, ओनली डिक्टेटरशिप. ओके, बट democracy is a form of government run by the representative of the people, and government is responsible to people for its action. Okay, so in this way we have discussed our voting system, our government system, गवर्नमेंट किस तरह से रन करती है, कैसे हम अपना इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, उसे चूज़ करने के बाद हमारा जो सरकार चलती है बहुत स्मूथ वे में चलती है और वो एक अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है. सो अगर हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव गुड चुना है तो हमें उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगी. ओके, फर्दर ओके, गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक. ओके, बाय, थैंक्स.